And if I want to die the knot with her, I will definitely will because I genuinely love her. Hey guys, I'm Asha here. मैं हूँ ईशान सहगल. Guys, go and subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now. Go subscribe. All right, the awesome twosome lovebirds है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, but Maisha Iyer, the higher you go up, the more stronger you become. और उनके साथ है उनके मजनू ईशान. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बता दो क्या हाल चाल है? I love the pun. I love the pun. Yeah. You Good like going. it? Good things about me. मुझे लगा कि आप लोग जब इंटरव्यू करेंगे मेरे साथ तो माइशा का हाथ ईशान के हाथ में होगा. सो अभी क्या टेबल के नीचे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं? Yes, kind of. बट यू नो मुझे रियली बताओ, genuinely can I say that ईशान और माइशा are in love? Yes or no? I know he is. I need some time to think about it. She's so kameeni, No, Baba. no, no. No. Yeah, I think both of us have said a zillion times, and yeah, we are dating. Yeah, and we are in love. Yeah. My God. बहुत दिल से है. I mean, I genuinely love her. और ये कोई शो के लिए नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, कुछ प्लान नहीं था. मिला, बहुत क्यूट लगी और पहले हफ्ते में ही जब उसने मेरा लीस्ट फेवरेट में नाम लिया था, पता नहीं वो इतना हर्ट मुझे पर्सनली क्यों किया कि उसके बाद से भी स्टार्टेड टॉकिंग और फिर अभी तक बस बातें ही चल रही हैं. और एक सेपरेट बिग बॉस के अंदर एक बिग बॉस शुरू हो गया था विद नो प्लान्स, नो स्ट्रैटेजीज, बट ओनली लव. मेरा डायलॉग वाह. इसको कहते हैं लवर्स, नाइट लवर्स. बट यार सबका ये कहना है कि देखो यार, हाउ कैन एनीवन विद इन 3-4 days घर के अंदर प्यार में पड़ जाए? ये माने किसी को विश्वास नहीं हो रहा. माइशा, How can people after dating for 10 years fall out of love? Same way, why not people being together 24/7 for 7 days fall in love? I mean, किसी का कुछ timeline नहीं होता है, warranty guarantee कुछ नहीं होता है. We felt a very deep connection. We fell in love, and I still remember you had asked me. I remember this so clearly. You had asked me before I went in that are you like looking for love? Your name has been associated with other guys in the past, and I was like, no. You know, none of them were. You know, they're just friends and all of that. But now I am going to tell you that hi, please meet my boyfriend. He's not a friend. He's my boyfriend. यार पर आई लाइक दिस. या बहुत से लोग अभी भी जो घर के बाहर थे फिर अंदर गए, वो अभी भी बोलते हैं यू नो हम लोग फिगर आउट करेंगे कि हम प्यार में है कि नहीं. माइशा, आई लव द फैक्ट कि तुम डंके की चोट पर कह रही हो यू आर इन लव. बट मुझे बताओ, जब ये कहानियां बाहर फ्लोट होती है कि माइशा और ईशान शो के लिए स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, इट्स ऑल फेक, शो जीतने के लिए करते हैं, दर्द होता है, क्या होता है तुम्हारा रिएक्शन ईशान? यार मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं था कि माइशा ये शो में आ रही है. और मैं पर्सनली आई स्वेयर टू गॉड मैं जानता भी नहीं था इसको, ना ये मुझे जानती थी पर्सनली. हमारी जिंदगी में कभी बात नहीं थी. मतलब मुझे पता था कि माइशा एयर एक सेलिब्रिटी है, खूबसूरत सी. एंड डेफिनेटली यार जो भी कनेक्शन है बहुत दिल से कनेक्शन है. एंड आई जेन्युइनली फील फॉर हर एंड आई जेन्युइनली लव हर. बट बताओ जेन्युइनली, जब लोग कहते हैं कि यार तुम दोनों का रिलेशनशिप फेक है शो के लिए, डज इट हर्ट माइशा? I think after a while we just didn't care. Okay, we were like जिसको जो सोचना है. We were, I'm telling you, we were so into each other. We were so inseparable that we didn't care what the world had to say. Also, initially, you know, everyone was like, "Oh, is this fake? Is this a strategy? Is it this? Is it that?" And towards the end, everyone was like, "Arey yaar, तुम लोग please अलग तो हो जाओ. Play your separate games. What is this always together?" I think that was only an answer to them. That, you know, at one point you thought it was fake, and now you're telling us to, like, you know, play our own games. But it wasn't planned, yaar. We didn't want to, you know, keep it inside of us. If I felt something for him, if he felt something for me, and if we then didn't tell each other, we would be fake to ourselves. So when he felt it, he said it to me. When I felt it, I said it back to him. प्यार दो प्यार लो मेरे दोस्तों. यार सलमान खान ने कहा था कि अगर तुम दोनों अपने इंडिविजुअल गेम्स पर फोकस करते
देन शायद तुम लोग ज्यादा लंबा सर्वाइव करते इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लव एंगल। ईशान, तुमको क्या कहना है इस कमेंट पर जो सलमान ने कहा था तुमसे? भाई मुझे लगता है पर्सनली व्हेन योर टाइम इज अप योर टाइम इज अप। जितना नसीब में लिखा था उतना रहा मैं शो के अंदर, और ये भी उतना सस्टेन करी। बाकी यार कुछ जैसा हम कह रहे हैं, कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, और मैं इतना इसमें इन्वॉल्व हो गया था, ये मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही थी कि वी जस्ट डिडंट केयर। आई मीन बिल्कुल पड़ी नहीं थी कि कौन क्या सोच रहा है। जब टास्क आते थे वो अपना 100% देती थी, मैं अपना 100% देता था। बट जब हम साथ में होते थे, हम अपने दूसरे से एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करा करते थे, गेम में और बेटर क्या कर सकते हैं वो बात किया करते थे। बट हमें किसी की नहीं पड़ी थी शो के अंदर, और अभी जब हम बाहर आए तो हम रियलाइज करें कि एक्चुअली हम तो 24 घंटा साथ में थे यार। And also talking about like we could sustain more on the show. I think somewhere both of us were each other's anchor too. Like we were, you know, a support system to each other. And you must have seen I took cried every day. Okay, sometimes for him, about him, about someone else. But I just feel that if I had no one to go to, okay, at that moment it would have broken me more emotionally. And I honestly think he was my support system on the show. And I don't like being an emotional wreck that I am unsure how much I would have, you know, mentally been able to focus on anything if he wasn't there. Exactly my point. I mean, मुझे नहीं लगता कि अगर ये शो में नहीं होती तो मैं सर्वाइव कर पाता। ये मैंने शो में भी बोला है। Just because I used to cook for him, that is the only thing. You like कि survive बिना खाने का कैसे survive करूँगा? वो पॉइंट भी है कि खाना एक तो बहुत अमेजिंग बनाती है, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर पे नहीं हूँ और मैं घर का खाना मिस करूँ, बिकॉज इसने जो खाना बनाया भाई शो के अंदर, आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मुझे मजा आ जाएगा करता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी। इसको होता था कि मेरी सैनिटी मेंटेन रहे, जिसकी वजह से मैं और इससे क्लोज sanity and sometimes insanity also. All the reason was me only. ये तो है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। Ownership ले रही हूँ मैं। अरे सारे इमोशंस मोहब्बत में अच्छे लगते हैं, गुड बैड अगली, यू गॉट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। पर मुझे बताओ, आकाशा ने मुझसे कहा मायशा की यू लॉस्ट हर एज अ फ्रेंड बिकॉज तुम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी ईशान के साथ और तुमने आकाशा को इग्नोर किया। तुम्हें क्या कहना है इस कमेंट पर? Okay, so when I first stepped into the house, I really thought that Akasa and me would be like really good friends and all of that. But I won't say कि मेरा I mean, I lost her as a friend because I got close to Ishan. Because if that was the case, I wouldn't have such a strong bond with JB, with Jay. I wouldn't. I mean, I'm really dote on Vidhi. Okay, we were chatting right now. We're going to meet soon. I also started getting really close to Shamita recently. So I think if that was the case, you know, I wouldn't make all these other things that I had. Also, maybe at some, you know, when you first see someone and you know, you all will get along really well, but then things don't go according to the plan, and maybe you don't get along so well. So yeah, maybe that happened, and I think it's fine now. If we maybe we were just not destined to be friends on the show, but then if she says that you know, she lost she lost me as whatever her friend, मैं खुद से सामने से I'm going to make sure that I put my hand out and be like, you know, let's give it a shot, let me, because हमने बहुत plans बनाए थे बाहर जाके reels बनाएंगे, all of that. So yeah, and if that's what she feels and that's what's hurt her, I'm definitely going to make my first move इधर इन्होंने किया, first move उधर मैं करूँगी. I will go and tell her that, you know, if I ever hurt her, I'm really sorry for that. That is so sweet मेरे भाई, एक झप्पी दे देना मायशा को. That is really such a sweet statement. दे दो भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, किसी और की नहीं है. हाँ डाले, ओहो, बस एक्सक्यूज चाहिए भाई साहब को चिपकने के लिए. हाँ भाई. भाई जब सिम्बा ने उमर को पुश किया था स्विमिंग पूल में, सिर्फ तुम ही थे जिसने एक स्टैंड उठाया था, राइट? वो इसलिए उठाया था बिकॉज ऑफ योर बॉन्डिंग विद उमर, या फिर तुम्हें जेन्युइनली लगा कि सिम्बा गलत था? सिम्बा डेफिनेटली गलत था उसके अंदर, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अगर सिम्बा ने उसको पुश किया स्विमिंग पूल के अंदर, मेरे ओपिनियन में अगर वो सिम्बा की जगह कोई और होता, मैं ही क्यों ना होता या उमर ही क्यों ना होता, और हमने किसी को धक्का मारा होता, हम आधे घंटे के अंदर अंदर शो से बाहर हो चुके। मुझे नहीं समझ आया कि उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया,
बट डेफिनेटली उमर मेरा दोस्त है, पर सिम्बा भी मेरा दोस्त था, और जो उसने किया मेरे ओपिनियन में बहुत गलत था। और वो इसलिए नहीं मैंने उस टाइम पे स्टैंड लिया क्योंकि उमर मेरा दोस्त था, वो मैंने स्टैंड इसलिए लिया कि सिम्बा ने जो किया वो बहुत गलत किया। मुझे बताओ, क्या मायशा तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि शमिता को फेवर किया जा रहा है क्योंकि राकेश बापट को शो में वापस बुलाया गया है, नेहा भसीन को बुलाया गया है जो बहुत करीब है शमिता से, क्या उसकी फेवरिंग हो रही है? Okay, so I have maybe a very different perspective to this. I feel that अगर Shamita's friends या घर वाले भेजते थे, then that would have been a little, biased or unfair or whatever. But Rakesh and Neha both were contestants on the OTT Big Boss. Okay, so obviously they were strong contenders. They've come here. The other thing is Vishal. Vishal is a contestant on Big Boss. She made a good rapport with him, so kudos to her. Rajiv, if she was close to Rajiv was also friends with him. So again, it's not that only he knew Shamita, and like he had actually told me that Rajiv is very well connected to someone, to everyone in the industry. So regardless of Shamita, it would be anyone else, he would have that connection with that person. So अगर आप बोल रहे हो कि घर से किसी को भेज रहे हैं या फिर बाहरी दुनिया से कोई भेज रहे हैं शमिता के लिए, then we could have had this conversation. But here सब लोग contestants ही थे. And it was kudos to Shamita for making a great rapport with everyone. Exactly. राजीव अदातिया, राइट? अब मुझे बताओ, ईशान, बहुत सारे रूमर्स फ्लोट हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईशान शायद एक रिलेशनशिप में था राजीव अदातिया के साथ। व्हाट इज इट भाई, क्या सीन है? दिल से बताओ, भाई टू भाई। यार मैं पहले भी बोला हूँ और मैं अभी भी बोलूंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और इनफैक्ट बहुत अच्छा दोस्त है, बट रिलेशनशिप की बात रही है, ये सब बात रही, ये फेक रूमर्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कभी भी इतने चौड़ में, बिकॉज मैं बहुत अनफिल्टर्ड आदमी हूँ, मैं कभी स्टैंड लेता हूँ, मैं कुछ बोलता था शो के अंदर तो मैं बिना सोचे बोलता था। मुझे पड़ी नहीं थी कि मेरे सामने 250 कैमरा लगे हुए हैं। मैंने इससे ऐसी ऐसी बातें शेयर करी हैं शो के अंदर जो इंसान अपनी प्राइवेट स्पेस में नहीं शेयर करता, बट मैंने चौड़ में करी बिकॉज आई डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। मैं जो हूँ मैं हूँ, जो मेरी सेक्सुअलिटी है, जैसा मैं हूँ मैं वैसा हूँ, और मैं किसी चीज को कवर अप नहीं कर रहा। और मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ यार कि अगर मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाऊं और किसी आदमी के मुंह पे ठोक के बोलूं कि अगर कुछ है तो बोलना, नेशनल टेलीविजन है, अगर तो कुछ है तो बोल, तो फिर वो आई थिंक क्लियर कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मेरा प्यार यही है और मेरा प्यार यही है और यहीं से शुरू हुआ है और यहीं पर रहेगा। जितना भी मैंने स्टैंड लिया, मैं बस चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड के माइंड में अगर कुछ डाउट्स आ जाएं, बिकॉज बहुत बहुत कम टाइम हुआ था यार मिले हुए। अगर 6 महीने से जानते होते, 1 साल से जानते होते तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा जानती होती, पर ऐसा नहीं था। हम जुम्मा मिले हैं और एक इंसान शो के अंदर आके अगर ऐसे डाउट्स क्रिएट करेगा जो मेरी इमेज अफेक्ट होगी, जहाँ पर मेरी नई जो मेरा रिलेशनशिप है, जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके माइंड में डाउट्स आएंगे, तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ एज लॉन्ग एज मुझे पता है कि मैं सही हूँ। और जब मुझे पता था कि मैं सही हूँ, मैंने क्या साइड रखो सब कुछ, कमरे में गया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा बोल तू नेशनल टीवी पे जो बोलना चाहता है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, तेरे मन में जो है बोल। कुछ आंसर नहीं था और उसके बाद यही आंसर था कि मैं सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा था। और मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि तेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती मायशा को, और तेरी बहन का तो बिल्कुल ही मना है कि वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी मायशा को। जब मैं बाहर आया मुझे पता लगा कि मेरी मॉम भी लाइक करती है मायशा को कहीं ना कहीं, और मेरी बहन भी लाइक करती है। और इनफैक्ट आज वो दिन था जहां पर मेरी सिस्टर ने खुद मुझसे बोला कि इशू आई वांट टू स्पीक टू मायशा बिकॉज हमें पता है कि तू उसके लिए कितना स्ट्रांगली फील करता है। तो आज लकीली भाई बहुत अच्छा दिन था कि ट्यूलिप ने, मेरी सिस्टर ने इससे बात करी एंड वी आर नाउ मेकिंग प्लान्स टू मीट। और बहुत जल्द मैं अपनी फैमिली को मायशा से मिलवाने वाला हूँ और इंशाल्लाह मैं पिक्चर शेयर करूंगा अपनी फैमिली की मायशा के साथ। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ऊपर वाले ने इतना काबिल समझा। आई हैव अ सिंगल मदर, तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी माँ है और मेरी बहन है अब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, एंड एट द सेम टाइम नाउ आई हैव मी टू लुक आफ्टर एंड टू टेक केयर ऑफ। तो दिस इज अ ब्लेसिंग और जो मैं बोल रहा हूँ बहुत दिल से बोल रहा हूँ। भाई मुझे जेन्युइनली बताओ, तुमने एक और बहुत दिल से बात की थी, एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया था। You had a conversation with Maisha जहां तुमने कहा किसी ने तुमको थ्रेटन किया, you had to become gay or like that. Right. तो वो बोलने के लिए क्या तुमने वापस वही ट्रॉमा फेस किया? तुम्हारे लिए कठिन था वो कन्फेशन करने के लिए?
भाई मेरे लिए कठिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं मुझे पता है कि मैं बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में हूँ, पर एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक कैसे होते हैं और डिप्लोमेसी कैसे करते हैं मुझे ये सब नहीं आता। जैसा मैंने आपको कहा, मुझे पता है कि 250 कैमरा लगे हुए हैं। कुछ ऐसी आप बाथरूम में भी जाओगे, आप कॉन्वर्सेशन करोगे तो वहां पर भी माइक लगे हुए हैं और आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। तो मैं तो क्या कहते हैं, बाहर गार्डन में इसके साथ बैठा हुआ था और इसने जब मुझे पूछा तो एज अ बॉयफ्रेंड मेरा फर्ज बनता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के डाउट में क्लियर करूं। तो उस वक्त जो इसने मुझसे पूछा, मुझे पड़ी ही नहीं थी कि बाहर जनता देख रही है, वो क्या सोचेगी। मेरे लिए प्रायोरिटी थी वो उस टाइम पे। और जो उसने पूछा मैंने उसको खुले दिल से बताया कि यार ये है, हम इस इंडस्ट्री में है और ऐसा होता है और ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये मैंने करा है। एज सिंपल एज दैट। But was it tough reliving those moments? यार ऑब्वियसली, बिकॉज मेरी जिंदगी में एक ऐसा फेज था जहां पर मैंने बहुत डिप्रेशन फेस किया है। और उस टाइम पर काम की कमी, पैसे की कमी और बहुत अप्स एंड डाउन्स पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में उस टाइम पे। बट रीलिविंग तो मुझे उस चीज को जब मैं वापस रिकॉल कर रहा था मेरी आंख में आंसू थे, बिकॉज मुझे पता है मैंने क्या फेस किया है। बट एट द सेम टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एज लॉन्ग एज मुझे अपने डाउट्स अगर मम्मी के साथ क्लियर करने हैं तो मैं अपना, आई वांटेड टू जस्ट स्पीक माय हार्ट आउट। मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया था, बट एट द सेम टाइम आई वाज हैप्पी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के डाउट्स ओहो, कितने रखे भाई साहब? नहीं नहीं भाई, एक ही है और दिल से यही है और दिल से इंशाल्लाह दुआ करूंगा कि यही रहे। तेजस्वी और करण क्या वाकई में सीरियस है अबाउट ईच अदर? Maisha? Honestly, we are no one to judge anyone's relationship because our own relationship has been judged so much left, right, and center that right now I don't think we are in a place to judge anyone's relationship. If they are in a relationship, we are very happy for them. All the very best and congratulations. इसी बात पर भाई लास्ट एक और चीज आ रहा है, दिल से बोलो, डू यू वांट टू गेट मैरिड टू माइशा? भाई मैं Ishu, no. व्हाट नो, Ishu. मुझसे पूछा गया है तो मैं बताऊंगा भाई डंके की चोट, मैन टू मैन, ब्रदर टू ब्रदर। अरे क्या बोल रही है, मैं बात कर रहा हूँ ना ऑन अ वेरी सीरियस नोट भाई। ये मुझे नीचे से पिंच कर रही है, बट यार मुझे बहुत पसंद है और जैसा मैंने कहा मैं दुआ करूंगा कि हम साथ में रहें। तो डेफिनेटली जब राइट टाइम होगा एंड इफ आई वांट टू टाई द नॉट विद हर, आई डेफिनेटली विल, बिकॉज आई जेन्युइनली लव हर। बहुत प्यारी है और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वी डेफिनेटली बी टुगेदर फॉरएवर। I want you to be together forever. I think Maisha is a kick-ass lady. और ईशान आज तेरे साथ बात करके brothers for life भाई तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हारी सच्चाई पसंद आई। Thank you Maisha. Thank you Ishan. Thank you so much. Thank you so much. Lovely Lovely talking to you, meeting bye. you. Yeah. मतलब अभी तक इंटरव्यू में मैं सच्ची बताऊं मैं ये नहीं थक बोल गया सकते हो, ये था, नहीं मैं बोल थक सकते। गया था बैक टू बैक इंटरव्यूज देते हुए। बट अभी आपने जो एनर्जी दी है, मतलब अभी मैं 5 इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ भाई। थैंक यू सो मच। Love you.